गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको चैप्टर 1 वाटर क्लास 12 रेनबो बुक का चैप्टर 1 वाटर का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि 5th पैराग्राफ से स्टार्ट होता है। इससे पहले आपको फर्स्ट पार्ट में मैंने 4 पैराग्राफ्स एक्सप्लेन किए थे। मैं सोचती हूँ आई थिंक यू हैव रेड दोज पैराग्राफ्स। The flow of water has undoubtedly played a great part and a beneficent one in the geological processes by which the soil on the Earth's surface has been formed from the rocks of its crust. The same agency, however, under appropriate conditions, can also play a destructive part and wash away the soil, which is the foundation of all agriculture, and if allowed to proceed unchecked, can have the most disastrous effects on the life of the country. The problem of soil erosion is one of the serious import in various countries, especially in many parts of India. The conditions under which it occurs and the measures by which it can be checked are deserving of the closest study. Soil erosion occurs in successive steps, the earliest of which may easily pass unnoticed. In the later stages, the cutting up and washing of the earth is only too painfully apparent in the formation of deep gullies and ravines, which make all agriculture impossible. Sudden bursts of excessively heavy rain resulting in a large runoff of surplus water is the principal factor in causing soil erosion. Contributory causes are the slope of the land, removal of the protective coat of vegetation, the existence of the ruts along which the water can flow with rapid gathering momentum, and the absence of any checks to such flow. Incredibly large quantities of precious soil can be washed away if such conditions exist. As is unhappily too often the case, the menace which soil erosion presents to the continuance of successful agriculture is an alarming one in many parts of India, calling urgently for attention and preventive action. The terracing of the land, the construction of the bunds to check the flow of water, the practice of contour cultivation, and the planting of appropriate types of vegetation are amongst the measures which have been suggested. It is obvious that the aim should be to check the flow of water at the earliest possible stage before it has acquired any appreciable momentum and corresponding large destructive power. पानी का जो फ्लो है निस्संदेह वो एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। ये लाभकारी तो है ही जियोलॉजिकल प्रोसेसेस में, यानी भूगर्भीय प्रक्रियाओं में, और जिसकी वजह से अर्थ का जो सरफेस है वो बनता है, और रॉक्स की क्रस्ट की सहायता से, यानी रॉक्स की जो क्रस्ट होती है, ऊपरी सतह जो होती है, वो पानी की रगड़ खा कर उससे जो पार्टिकल्स हैं वो मिक्सअप हो जाते हैं वाटर में, और ये जो वाटर है, यही एजेंसी एक दूसरा रोल भी प्ले करती है, और वो है डिस्ट्रक्टिव पार्ट, विनाशक भूमिका। ये सॉइल के ऊपरी पार्ट को वॉश कर देती है, जो कि फर्टाइल होता है बहुत, जो कि हमारी एग्रीकल्चर का फाउंडेशन होता है, आधार होता है। और फिर अगर इसे रोका नहीं जाए, चेक ना किया जाए, ये अनचेक्ड ये प्रोसेस चलता रहे आगे, तो ये ज़्यादा डिज़ास्टरस इफ़ेक्ट्स डाल सकता है बाद में कंट्री की लाइफ में। जो सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम है, सॉइल इरोजन जैसा कि आप जानते ही होंगे, इसे भूमि कटाव या मृदा अपरदन कहा जाता है। ये सीरियस इफ़ेक्ट होता है कृषि पर, और हमारे कुछ देशों में ये काफ़ी सीरियस इफ़ेक्ट डाल रहा है, और ख़ास तौर पे इंडिया में भी बहुत सारे पार्ट्स में। वो कंडीशंस जिनकी वजह से ये चलता रहता है सॉइल इरोजन, वो स्टार्टिंग में ही रोक देना चाहिए, क्योंकि सॉइल इरोजन एकदम से नहीं होता है, सक्सेसिव स्टेप्स में होता है, यानी कि एक के बाद एक स्टेप्स में चलता है ये। और सबसे पहले तो क्या होता है, हम लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं, अननोटिस रहता है ये। और बाद के स्टेजेस में क्या, बाद की अवस्थाओं में क्या होता है, धरती का ऊपरी सतह वॉश होती चली जाती है, और इसकी वजह से
ये बहुत ही हमें पेनफुल नज़र आता है। क्यों? क्योंकि गलीज बन जाते हैं, डीप गलीज, और रेवाइंस बन जाते हैं, खड्डे दरारें वगैरह बन जाती हैं मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर, भूमि के अंदर, और वहाँ पर कृषि एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल हो जाता है। अचानक तेज़ जो हैवी एक्सेसिवली हैवी रेन्स आती हैं, तेज़ बौछारें आती हैं वर्षा की, और उसका रिज़ल्ट भी ये रहता है कि जो लार्जर पार्ट होता है वाटर का, जो सरप्लस पार्ट होता है, जो अतिरिक्त पानी होता है, एक्स्ट्रा पानी होता है जो भूमि एब्जॉर्ब करती है, उसके अलावा वो जो होता है पानी तेज़ गति से बहता जाता है। यही प्रिंसिपल फैक्टर बनता है, ये मुख्य कारण बनता है सॉइल इरोजन को करने में। और सहायक अन्य कई भी कारण होते हैं, जैसे कि धरती भूमि हमारी स्लोप वाली होती है, ढलान वाली होती है, तो पानी रुक नहीं पाता, और साथ ही साथ तेज़ बहाव की वजह से जो प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन होता है, यानी सुरक्षात्मक परत जो होती है वनस्पति की, वो भी बह जाती है। और सुरक्षात्मक परत बहने की वजह से फिर उसके ऊपर लार्ज क्वांटिटी में, बड़ी मात्रा में प्रीशियस सॉइल भी बह जाती है। बहुमूल्य कीमती जो ऊपरी परत होती है मिट्टी की, वो भी बह जाती है, और ये जो है ये खतरा बन जाती है, चुनौती बन जाती है, मीनेंस बन जाती है सॉइल इरोजन। अगर ये कंटिन्यू रहे, जारी रहे, सक्सेसफुल एग्रीकल्चर नहीं हो सकती, और ये बहुत ही अलार्मिंग चीज़ है, बहुत ही चौंका देने वाली, चेतावनी देने वाली चीज़ है इंडिया के काफ़ी पार्ट्स में। और अगर इस पर तुरंत अटेंशन ना दिया जाए, ध्यान ना दिया जाए, प्रिवेंटिव एक्शन ना लिए जाएं, रोकथाम वाले कार्य ना किए जाएं, तो ये बहुत ख़तरनाक सिद्ध हो सकती है। और रोका कैसे जा सकता है सॉइल इरोजन को? उसके कुछ तरीके हैं, जैसे कि द टेरेसिंग ऑफ द लैंड पर टेरेसेस बनाकर, सीढ़ीदार ढलान नुमा खेत बनाकर, सीढ़ीदार खेत बनाकर, कंस्ट्रक्शन ऑफ बांड्स यानी कि बांधों का निर्माण करके चेक कर सकते हैं, रोक सकते हैं फ्लो ऑफ वाटर को। प्रैक्टिस ऑफ कॉन्टूर कल्टीवेशन से, यानी समूचे खेती से, प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ वेजिटेशन से। और ये कुछ प्रमुख सहायक तत्व हैं जो सुझाए गए हैं लेखक द्वारा, जिनके द्वारा हम सॉइल इरोजन रोक सकते हैं। और ये साफ है कि हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? पानी के बहाव को रोकना, उसको जहाँ तक हो अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेजेस पर ही रोक दिया जाए। ये बहुत अच्छी गति पाले उससे पहले ही रोक दिया जाए।